ممتاز عالم دین پروفیسر پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی کی جنازہ ہیلن فیکس میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں عقیدت مندوں، علماء اور سیاسی اور سماجی رہنما شریک ہوئے۔ تنویر بخاری کی رپورٹ دیکھیے۔ حوالے رب دے تے لگیاں پین جدائیاں۔ ممتاز عالم دین پروفیسر پیر سید احمد حسین شاہ ترمذی کی نماز جنازہ ہیلی فیکس میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں ہزاروں عقیدت مندوں، علماء اور سیاسی و سماجی رہنما شریک ہوئے۔ اس موقع پر عقیدت مند اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے، بہتے آنسوؤں اور آہوں سسکیوں کے ساتھ پروفیسر سید احمد حسین شاہ کو دار فانی سے رخصت کیا۔ سنے کون قصہ درد دل، میرا غم گسار چلا گیا، جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ کرم شار چلا گیا۔ قلبِ افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں۔ پیر سید احمد حسین شاہ کی عمر 66 برس تھی۔ آپ نہایت متقی، پرہیزگار، خوش اخلاق، عالم دین اور نیک سیرت انسان تھے۔ ان کی نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے حافظ سید محمد حیدر شاہ نے پڑھائی، جبکہ دعا مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ گیلانی نے کی۔ پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی الجامعہ زہرا کے بانی اور مرکزی جماعت اہل سنت UK کے صدر بھی تھے۔ مرحوم نے یورپ کی سرزمین پر دین اسلام کی سربلندی کے لیے ناقابل فراموش کردار ادا کیا اور ان کے ہاتھوں پر متعدد غیر مسلموں نے اسلام بھی قبول کیا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ حضرت پیر سید احمد حسین شاہ صاحب ترمذی ایک فکری، تحریکی، تنظیمی آدمی تھے اور ایک پر اخلاص دینی رہنما تھے۔ ان کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے کئی عرصہ تک یہ پر نہیں ہو سکے گا۔ ہم آپ کے صاحبزادگان سے، آپ کے خاندان سے دلی اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں بے پناہ خوبیوں سے نوازا تھا۔ جب بھی کسی سے ملتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملتے تھے۔ حضرت قبلہ پروفیسر صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس قحط الرجال میں جب کبھی کوئی علم کا راہی تلاش سفر میں نکلتا تو ان کے لیے وہ ٹھنڈی جھونک تھے، ٹھنڈا سہارا تھے۔ آج ہم اس عظیم ہستی سے محروم ہوئے ہیں جس نے باپ بن کر سب پر ٹھنڈی چھاؤں کر رکھی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جب سے پیر صاحب یہاں تشریف لائے ہیں اس دن سے لے کر الحمدللہ آج تک ہماری سنگت قائم رہی ہے۔ دکھ کا دن ہے۔ ہماری جماعت کی جان سید پیر احمد حسین شاہ صاحب ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو ایک بڑے عظیم خاندان کے فرزند تھے، جس خاندان نے گزشتہ پوری صدی میں پنجاب کی سرزمین میں دین کے جھنڈے کو بلند رکھا اور انہوں نے مذہب آل حق کے لیے آزار اٹھائے، تکلیفیں اٹھائیں۔ بعد میں تو لاکھوں دعوے دار بنے، لیکن جنہوں نے عین دکھ کے وقت سنیت کی پرورش کی وہ یہ خاندان ہے۔ حضرت صاحب کے انتقال سے ایک بہت بڑا علمی اور روحانی خلا پیدا ہوا ہے، بالخصوص مرکزی جماعت اہل سنت کے لیے آپ کے تشریف لے جانے سے وہ خلا ہوا ہے جو پور نہیں ہو سکے گا۔ آج استانہ لیا شہنشاہ ولایت کا ایک پھول چلا گیا، جس نے دین کی خدمت صرف ہیلی فیکس میں نہیں مگر یورپ میں بھی کی، پاکستان میں بھی کی۔ یہ فضین شہنشاہ ولایت ہے، سچ ہے کہ پوری دنیا میں صاحبزادوں نے، پوتروں نے، سب نے خدمت کی ہے دین کی۔
पीर सैयद अहमद हुसैन शाह गुजरात के पीर सैयद विलायत शाह साहब के इल्मी घराने के चश्मो चिराग थे। उनकी सारी ज़िंदगी कुरान और हदीस का दर्स देते और कुतुब अहादीस के असबाक पढ़ाते गुजरे। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, हैलिफैक्स। लिबरल डेमोक्रेट रहनुमा और NHS ट्रस्ट बोर्ड फाउंडेशन की मेंबर हिना मलिक ने कहा है कि बरतानिया में NHS के स्टाफ और दीगर तिब्बी अमले ने कोरोना वायरस के मुश्किल हालात में जिस तरह खिदमत की काबिल सताइश है। ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन आवान से बातचीत करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में हिना मलिक साहबा मौजूद हैं जो कि लिबरल डेमोक्रेट की रहनुमा भी हैं और इसके अलावा जो NHS का ट्रस्ट बोर्ड फाउंडेशन ट्रस्ट बोर्ड है उसकी जो है गवर्नर भी हैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर। तो NHS आपको पता है कि कोरोना वायरस के हवाले से ज़ाहिर है नबर्द आज़मा है और जो कोरोना वायरस की जितनी भी गाइडलाइन आती हैं वो बरतानिया के अंदर वो NHS के थ्रू आती हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है कोरोना वायरस के हवाले से आपका एरिया जो फेल्थम और हेस्टन है इसके अंदर क्या पहले बताएंगे, नए केसेस भी आ रहे हैं सुना? जी हाउसलों में इस वक्त जो एक खौफ थोड़ा सा बैठा हुआ लोगों में वो ये है कि यहाँ केसेस डेवलप हो गए ज़्यादा। उसके हवाले से ये भी देखा जा रहा है मे बी माइट गो इनटू लॉकडाउन। ज़रूरी नहीं अगर वो नहीं उस तरह से सूरत हाल हुई तो नहीं भी होगा, बट दिस इज़ वन ऑफ द सिचुएशन। या वी हैव टू, इसमें ये एक एरिया को जैसे लॉकडाउन किया ताकि दूसरे एरियाज़ में ना डेवलप हो सके। जो यहाँ के लोग हैं उन्हें खुद अपने तौर पे अलर्ट कर दिया गया है कि दे नीड टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस। जैसे आपको पता है लॉकडाउन इस वक्त ईज़ हुआ है थोड़ा सा और कुछ वेदर भी नाइस हुआ है तो लोग बाहर निकलना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से कहा गया कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, अगेन टेक ऑल द प्रिकॉशंस, जैसे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग की आपको पता है एक वो रिक्वायरमेंट है, वो है आपको कवर योर फेसेस सो व्हेन यू गो आउट एंड ऑब्वियसली द मिनिमल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट राइट नाउ। जब NHS की जो मीटिंग ऑनलाइन होती है नॉर्मली उसके अंदर क्या डिस्कस होता है कि किस तरह आपने जो कोरोना वायरस के जो इसको मेजर्स कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने के लिए? देखें, बीइंग अ गवर्नर हमारी जॉब यही है कि टू ऑब्वियसली रेगुलेट the hospitals to see कि they are looking after this pandemic। जो उन्होंने measures लिए हैं कि वो appropriate हैं, उसमें कोई वो distinguish तो नहीं कर रहे within communities and things like that। plus ये देख रहे हैं कि जो उन्होंने pods बनाए हैं और जो key workers हैं उनको कैसे protect किया जा रहा है, क्योंकि they are the frontline key workers। अगर वो protected नहीं होंगे तो then जो मरीज आ रहे हैं उनकी look after कैसे होगी। इसके अलावा आप key worker भी हैं, जैसे कि आप स्कूल टीचर हैं, तो स्कूल की पोजीशन में बताएं कि यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है कि जो बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं पेरेंट्स तो भेजें, जो नहीं भेजना चाहते वो ना भेजें। तो इस तरह बच्चों की तालीम ज़्यादा हर्ज नहीं हो रही इस तरह? पहले तो मैं आपको बताऊं स्कूल कभी क्लोज हुए ही नहीं थे, दे वर ओपन फॉर द की वर्कर्स चिल्ड्रन। तो की वर्कर्स चिल्ड्रन के पॉड्स बने हुए थे इन द स्मॉलर ग्रुप जो आ रहे थे, तो लेकिन बहुत कम तादाद के अंदर आ रहे थे। लेकिन जब से उन्होंने ये ईज़ किया था कि ईयर रिसेप्शन ईयर 1 और ईयर 6 आए, तब से इवन देन बहुत कम बच्चे वो एक पॉड में जैसे 10 और 12 के हिसाब से हैं वो बच्चे आ रहे हैं एक स्कूल में अगर वो 1 फॉर्म एंट्री है। आई थिंक वी as people should be responsible for looking after ourselves right now। अगर हम वो अपॉर्चुनिटी ना दे इस पेंडेमिक को फैलने के लिए then we can control this। लेकिन इस वक्त जो आपने जो करंट फर्स्ट वेव आई थी और उसके अंदर जो हिट हुआ, आई अग्री विद यू कि एवरी इंडस्ट्री हैज़ बिन हिट, कोई एक भी डिस्टिंग्विश नहीं हुआ कि ये वाली इंडस्ट्री हिट हुई है उसमें नहीं हुई। एंड सम कंपनीज हैव टेकन दिस अपॉर्चुनिटी टू ले ऑफ द स्टाफ हु वर ऑन अ बेटर पे स्केल्स, दे हैड बेटर पर्क्स। तो कुछ इंडस्ट्रीज ने ऐसे भी काम किया है कि अपने ओल्डर स्टाफ को दे हैव लेड ऑफ और यंगर जो न्यू रिक्रूट्स लेंगे वो उनको वो पर्क्स नहीं देंगे। तो इस तरह वो अपने आप को सेफ गार्ड कर रहे हैं कि किसी तरह वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट उनकी कायम रहे, इससे पहले ख़त्म ना, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी रिटेल चेन स्टोर्स बंद हो रही हैं। तो दिस इज़ लाइक अ बिगर इशू। तो वी हैव बेटर चांसेस, हमने डिसइंफेक्ट किया है एवरीथिंग, सो वी आर इन अ बेटर पोजीशन। बट व्हेन यू गो इन अ पब्लिक प्लेस, आप कोई चीज़ टच कर रहे हैं और उस पर अगर किसी और ने ऑलरेडी टच किया हुआ है एंड देयर। उधर लंदन के इलाके हॉलिंगटन में मरी गलियात वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम सालाना मीटिंग का एहतमाम किया गया। इसी दौरान मरी गलियात में कोरोना के दौरान इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल भी हुआ। गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। मगरबी लंदन के इलाके हॉलिंगटन में पंजाब के शहर मरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की तंजीम मरी गलियात वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए एहतमाम सालाना मीटिंग हुई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मीटिंग के रूह रवां जाहिद अब्बासी ने बताया कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की तरह मरी गलियात में भी लोग परेशानी में मुब्तला रहे, जिसकी वजह से लोगों को माली और जहनी दबाव का सामना करना पड़ा। बरतानिया में गलियात वेलफेयर ट्रस्ट ने कोशिशें करके 14 लाख के करीब रकूम इकट्ठी करके मरी में जरूरतमंदों को पहुँचाई ताकि लोग अपने रोजमर्रा
रोजमर्रा के मामलात निपटा सकें। उन्होंने कहा कि ईद कुर्बान पर भी ट्रस्ट की जानब से दुखी बहन भाइयों की हर मुमकिन मदद की कोशिश की जाएगी। ये मीटिंग बेसिकली मरी में जो अभी करंट सिचुएशन है, जो हमने फंड्स इकट्ठे करके तकरीबन 14 लाख रुपया मरी के लिए भेजा था, उसके हवाले से हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने ग्राउंड पे जो अलखिदमत को फंड्स वगैरह जमा कराए उनके हवाले से, और यहाँ पे जो हमारी कम्युनिटी ख़ासकर बरतानिया में जो लोग रहते हैं उनके हवाले से आगे लाएमल तय करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मौके पर कारी तैयब अब्बासी ने कहा कि हमें बरतानिया में रहते हुए मुश्किल की इस घड़ी में अपने बहन भाइयों को हरगिज नहीं भूलना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए ताकि वो कोरोना के इस मुश्किल दौर का मुकाबला कर सकें। हर जगह लोग मुतासर हुए हैं, मजहबी तबका सारे, हमें तो मस्जिदों के अंदर जा ही नहीं सके और मस्जिदों को हमने लॉक कर दिया। अब मसला ये है कि हमें अपने यहाँ लोग चलो फिर भी किसी न किसी तरह अपना वक्त अच्छा गुजार रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र हमें अपने मुल्क में उन लोगों की, उन गरीबों मिस्कीनों की कि जिनके पास एक वक्त का खाने का नहीं, उनके लिए हमने अंदरून खाना लोगों से बातचीत करके कोशिश की कि उनके साथ पूरी हेल्प की जाए और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके लिए पूरी तरह अभी भी तैयार। आफ्ताब अहमद ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जब भी लोगों को ज़रूरत पड़ी है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा मुसीबत में अपने बहन भाइयों की भरपूर मदद की है। हम वतनों की खैर ख्वाही का सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। हम लोग थोड़े से प्रिविलेज लोग हैं और पाकिस्तान में इतनी प्रिविलेज लोग नहीं हैं, उनकी सपोर्ट के लिए हमारी जो कम्युनिटी यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम लोगों को चाहिए था कि बढ़ चढ़ के अपनी कम्युनिटी के साथ मिल के अपने पाकिस्तान में जो बहन भाई हैं उनकी मदद करनी चाहिए। सेशन की तरफ से मुझे 14 लाख रुपए भेजे गए थे, जो मैंने 10 लाख रुपए मरी को दिए और 4 लाख रुपए तहसील डोरा को दिए KPK। और इसमें कोविड-19 में लॉकडाउन हो गई थी और इतनी गुर्बत थी कि इंसान बयान नहीं कर सकता है, और इससे यहाँ से जो पैसे गए हैं इससे बहुत लोगों को मदद हुई है। लोग साहब हैसियत थे, उन्होंने अपनी अपनी तो कंट्रीब्यूशन की है ना, जो ना वहाँ के, लेकिन जो मिल के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई ना कि जो भाई सबको जिस तरीके से अभी हमारी मरी वेलफेयर गलियात का इन्होंने अपनी तरफ से ना जो हमारे इलाकाई जो थे सब बंदों ने मिलकर उसकी ना मदद भी की है और वहाँ पैसे भेजे भी हैं ना। इसके लिए बहुत ज़रूरी है जी कि पहले यहाँ पे हम सबको एक साथ होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना भी हो सके हम एक दूसरे के करीब आएँ और कुछ जमा कर सकें और पाकिस्तान लोगों को दे सकें। तकरीब से नवीद अब्बासी, ज़हीर अब्बासी, काशिफ अब्बासी, तुराब अब्बासी, नदीम अब्बासी, गुल अब्बासी, वसीम दानियाल और आफ्ताब अहमद ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शुरका ने मुसीबत की घड़ी में अपने हमवतनों की मुस्तकबिल में भी भरपूर मदद करने का अज़म जाहिर किया। गुलाम हुसैन अमान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़, यूके। अमाराती रियासत फुजैरा में पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी खलील बोनेरी की जानिब से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तरतीब दिए गए रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से तकरीब हुई, जिसमें काउंसिल ऑफिसर पाकिस्तान काउंसलेट दुबई भी शरीक हुए। मुदस्सर खुशनूद रिपोर्ट करेंगे। कोरोना वायरस की वबा के दौरान पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने भी पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए दिन रात काम किया। इस ऑपरेशन की कामयाबी पर अमाराती रियासत फजीरा में तंजीम के जनरल सेक्रेटरी खलील बुनेरी के दफ्तर में शुरका को ब्रीफिंग देने के लिए एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में काउंसिल ऑफिसर पाकिस्तान काउंसलेट दुबई भी शरीक हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खलील बुनेरी ने कहा, दुबई काउंसलेट के ताउन से 3 माह में फजीरा और रास अल खैमा से पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया, जबकि 17,000 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। 30,000 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत पाकिस्तान भिजवाया और 17,000 के लगभग तकरीबन पाकिस्तानियों को राशन दिया, और इसके साथ साथ तकरीबन 400 साढ़े 400 लैपटॉप जो है पाकिस्तानियों स्कूलों में तकसीम किया, जो कि हमारे फुजेरा स्कूल में भी काफ़ी लैपटॉप दिया बच्चों को, और ये इस जज्बे से दिया ताकि जो बच्चे हैं उसका जो लाइफ है वो ख़राब ना हो सके। उन्होंने कहा, पख्तून वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए अखराजात बर्दाश्त किए, जबकि दर्जनों कैदियों के जुर्माने अदा करके उनकी टिकटों का भी बंदोबस्त किया। हमने तो तकरीबन 2,500 तकरीबन पाकिस्तानियों को तकरीबन कौंसलेट के ज़रिए यहाँ से रास अल खैमा, फुजेरा, शारजा ये एरिया से तकरीबन भिजवाया है कौंसलेट के ज़रिए। उसने कौंसलेट जनरल ने सपोर्ट किया है, और तकरीबन 50-55 आदमी जो ऐसे थे उनके पास टिकट नहीं था, हमने टिकट प्रोवाइड किया, और
तकरीबन 18 ऐसा आदमी था कि वो ख़ुद अपने पाँव पे नहीं जा सका और वो व्हील चेयर और स्ट्रेचर के ज़रिए हमने भिजवाया। खलील बुनैरी ने इस मुश्किल घड़ी में ताउन पर अमाराती हुकूमत और पाकिस्तानी सफारती हुकाम को भी सराहा। आखिर में कौंसल ऑफिसर सैयद मुसव्विर अब्बास शाह को स्वैनर भी पेश किया गया। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, फजेरा।